Okay, first of all, what kind of compounds can we scan with NMR? Those with atoms with odd MRs. उनको हम निकाल सकते हैं. Okay? So for example, if I have 7H, तो वो कर सकता हूँ. 8H कर सकता हूँ. क्यों? इसलिए कि वो जो हाइड्रोजन है उसमें odd number of प्रोटॉन है, लेकिन ऑक्सीजन उसमें शो नहीं होता. ऑक्सीजन 8 वाला या ऑक्सीजन 16 वाला शो नहीं होता. कार्बन 12 शो नहीं होता. ठीक है, एक तो ये बात. दूसरी बात, द peak shifts based on the environment. So if multiple peaks shift by the same idea, they add to each other. So हम उसे बोलते हैं कि वो resonance हो रही है. So the delta, the shift is from the environment. So जितने environment उतनी shifts होंगी. And the splitting will be because of neighbors. And height will be how many are sharing the same environment. So height is because of the adjacent. Again, adjacent का मेरा यहाँ पे मतलब है कि उनका environment same है और neighbors का यहाँ पे मतलब है कि साथ वाले carbon पे. What is our reference? Does anybody recall? Reference क्या था जिससे हम zero बोलते हैं? What peak is the reference? Was it TMS? It was TMS, tetramethyl-silane. उसकी हमेशा जीरो पे पीक आती है. बेसिकली उसको हम बोलते हैं कि दैट इज वेयर द शिफ्ट स्टार्ट्स फ्रॉम. ठीक है, तो ये हमारी जीरो की शिफ्ट होती है इसकी. ठीक है, द यूनिट ऑफ शिफ्ट इज पार्ट्स पर मिलियन, बट उस पर कभी क्वेश्चन नहीं आता है. सो दिस इज द रेफरेंस पीक. तो इन्वायरमेंट से हमें पता चल जाता है कि वो किस तरह बिहेव करता है. और इन्वायरमेंट्स का हमारे पास टेबल है. यू कैन लुक एट द टेबल at the end of the data booklet. Even though data booklet is not going to be given to you, आपको relevant environments की peaks वो बता देगा कि कहाँ पे होती हैं. The splitting tells us about the neighbors, and वहाँ पे n+1 rule apply होता है. So singlet, doublet, triplet, quartet और उससे ऊपर भी जाते हैं. But they are just telling me how many of the rest of them. उससे ऊपर वैसे जाना अजीब लगेगा. ठीक है, वो इस केस में शायद नहीं जाएगा क्योंकि कार्बन ने 3 के साथ ही बनाया है. उसके ऊपर क्या करेगा वो? The ratio of their splitting comes from the Pascal's triangle, और वो हम खैर binomial theorem होता है. We don't want to go into the detail of that. So let's do a few questions. और hopefully हमें question करके ना कुछ समझ आ जाएगी. Okay, so मेरे पास ये this is a past paper question. एक compound है जिसका उसने बोला है कि this is the MR. Oh, sorry, this is the molecular formula. It has shifts which are roughly like this. There's one shift here which has a height of 9 and it is at 1.26. This is the shift. There is obviously a shift at 0 and there is a shift of 1 height at 2. Okay, first of all, tell me, is it a low res NMR or high res NMR? Low res. क्यों? Splitting नहीं है. Splitting नहीं है. Very good. So it's a low res NMR. Now, looking in the table, I can see कि 1.26 वाली जो splitting है, the shift है, वो CH3 से होती है. और 2 वाली मेरे पास OH से हो सकती है. Why am I doing this? Why am I just going to CH3? Even though table में मेरे पास और भी हैं. ठीक है, उसकी कोई खास वजह नहीं है सिवाय इसके कि मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि मेरे पास it is just one of these, और इसी तरह से उसने डिवाइड होना है. मेरे पास 1.26 पर CH2 भी हो सकता है और CH भी हो सकता है, but I am just assuming it to be CH3. हाँ, हमारे पास CH2 भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है. One more reason that I'm not doing this is because मेरे पास multiple peaks नहीं है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि सारे एक जैसे होंगे. But let's just go along with it. Similarly, 2 पे मेरे पास OH हो सकता है. 2 पे मेरे पास methyl next to C double bond O भी हो सकता है. CO with R, ये भी मुझे पीक देता है इसी तरह पे. No wait, ये 2.2 पे देता है, so ये नहीं हो सकता. 2 पे पीक और किसकी हो सकती है? Sir. Yes. The table you're talking about, it's in like the data booklet. It is at the end of the syllabus, yes. Oh, okay, thank you. Let me see, 2 पे और क्या होता है? 2 पे अल्कोहल है, उसके अलावा 2 पे amine है, NH with R next to it. लेकिन वो तो मेरे पास नाइट्रोजन है नहीं, तो I'll just reject it.
And yeah, those are the two that I can see here. All right, next moving on. अगर मेरे पास इसकी पीक 9 है तो इसका मतलब है there are 9 hydrogens sharing the same environment. तो 9 मोस्ट लाइकली CH3 होंगे ना. मेरे पास 9 CH3 वाले हाइड्रोजन है, मतलब CH3 3 है. ओके, 3 CH3 है. तो ऑब्वियसली चौथा कार्बन के साथ वो फिर तीनों ऐसे डायरेक्ट ही रह गए होंगे इसके साथ, और तीसरा फिर OH ही बचता है. तो दिस इज माय कंपाउंड. कर लिया, इजी क्वेश्चन. लेट्स से इसका कोई आइसोमर बनता है, बन सकता है ना. लेट्स से, व्हाट डू यू थिंक, इसके आइसोमर कोई बना सकते हैं? आई कैन हैव दिस मूव्ड ओवर हियर एंड exchanged with a hydrogen. So I will have 3 carbon की chain, one with CH3 and one with OH. Sir, Yes, I don't get this. Like, how did you get this like structure? I just made an isomer. So basically what I did is नहीं वो I moved. ऊपर वाला like NMR से like I don't ये get वाला that. स्ट्रक्चर कैसे आया? Yeah. Oh, basically मुझे नजर आ रहा है कि there are 9 hydrogens out of 10 Which have the same environment. which have the same environment. तो इसका मतलब है कि वो 9 का मतलब है 3 CH3s हैं. That's how I got this. अब अगर मेरे पास Sir, ये होता, yes, we like 2 वाली जो value है, so like वो हमने उस पीछे like data book से देखी है. तो like how do we know it's OH and not like the rest? क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा like उस range में है. 2 की रेंज में. Is it like exactly 2? Because I can't. नो, इट्स नॉट एग्जैक्टली 2. जो 2 की रेंज में ना हमारे पास वो है, अल्कोहल की रेंज है 0.5 से 6 के बीच में. So why और can't it be like वो अच्छा नहीं क्योंकि NH नहीं है. ठीक है, समझ आ गया. NH नहीं है. NH था ना, मैंने आपको बताया, बट N नहीं है, तो इस वजह से वो नहीं हो सकता. Okay, ठीक है. अच्छा, लेट्स Thank सपोज you. मेरे पास ये होता, हाउ मेनी पीक्स वुड आई गेट? 3, लेट्स सी, हाउ मेनी एनवायरनमेंट्स डू आई हैव? 1, 2. 2, 3 and 4. Do you get it? No. What do you mean no? Like एक एनवायरनमेंट मेरे पास है ये इस हाइड्रोजन वाला, एक एनवायरनमेंट है इस हाइड्रोजन वाला, ठीक है. वन एनवायरनमेंट इज दिस हाइड्रोजन, ये तीनों. वन एनवायरनमेंट इज दिस हाइड्रोजन एंड वन एनवायरनमेंट इज दिस हाइड्रोजन. Sir, so basically every carbon has its own environment. Now I have a question from you. Is there a chiral center here? Yes. Yes, this one is a chiral center. Will it have any different shifts? What do you mean? कोई shift इसकी different होंगी, मतलब? Yeah, like neighbors की वजह से. नो, एक्चुअली कायरल सेंटर्स जो होते हैं NMR में वो हमें डिफरेंट शिफ्ट शो नहीं करते. सो इसमें हमें अभी भी 5 पीक्स नजर आएंगी, और वो 5 पीक्स हमारे सामने 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है. एक और भी हो सकता है इसका. लेट मी ट्राई अनदर वन. लेट्स से मैं इसका एक आइसोमर बनाता हूं. हाँ, so one environment is these two, one environment is this one environment is these two, and one environment is this one. 4 environments. Clear? Yeah. Sir, what did you say about the chiral carbon? Okay, like it doesn't show shift. Chiral carbon doesn't show different shifts. And by different क्या मतलब? मतलब अगर एक chiral center है और दूसरा chiral center है, they do not show different shifts. Oh, मतलब like same होगी उनकी. हाँ, उनकी shift same होंगी. Okay, ठीक है. Thank you. Give me a 1 mark answer for why NMR can detect hydrogen atoms in a molecule. The reason they can do that is because they respond to magnetic field. क्यों? They have spins. The proton has a spin and that corresponds to resonance. ठीक है. अच्छा,
इंटरेस्टिंगली देयर इज अ टेक्निक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो हम बाद में देखेंगे, उसमें हाइड्रोजन नजर नहीं आता। उसकी वजह ये कि हाइड्रोजन जो है वो एक्सरे में इनविजिबल हो जाता है। रीजन, द एक्सरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो द इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर वो बहुत डेंस है, बहुत ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो एक्सरे में हमें इनविजिबल, हमें मतलब वो डार्क कलर का नजर, वो बड़ा उसका क्लाउड नजर आएगा। लेकिन हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसका क्लाउड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो वो हमें उसमें नजर नहीं आता उस वजह से। ओके, सो न्यूक्लियस को देखने के लिए वी हैव एनएमआर, और क्लाउड को देखने के लिए वी हैव एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ऑलराइट, let's try another one. I have this partial question here. This one has 4 peaks, one at 0, obviously वो क्या TMS की है. There's one close to 1, like not in exactly at 1 but उसके पास. 1 2 3 4. Okay, so there's one peak slightly behind this with a height of 9, one peak slightly above 2 at a height of 1, and one between 3 and 3.5 at height 2. ठीक है, ये मेरे पास NMR है. वो कहते हैं कि how many protons are there in this molecule? जी बताइए, how many protons do you think are there? प्रोटॉन क्या होते हैं? All the things that respond to the NMR. 9 है, 1 है, 2 है, टोटल कितने हो गए? 12 प्रोटॉन्स, 12 हाइड्रोजन है इसके पास। इसलिए आप देखोगे कई दफा एग्जाम में उसने 2H 1H 9H लिखा होता है। दैट सिंपली शोज कि कितने प्रोटॉन है उसके पास। ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज D2O is added to this compound and the delta near 2 disappears, the shift near 2 goes away. D2O का क्या काम है? Thing is, when we add D2O to anything that has OH or NH even, there is going to be a proton exchange. So when you add D2O, which is basically water, heavy water बोलते हैं उसको, when you add that there, so होता क्या है कि this changes to OD and this changes to ND, and deuterium has 1 proton and 1 neutron in it. So this goes invisible, or this does not show a shift in the NMR. So उससे क्या होगा कि we will be able to separate things that might be confusing to us. मतलब अब 0 OH की रेंज बहुत ज्यादा है, आई थिंक वो 0 पॉइंट कुछ से लेकर 6 तक नजर आ रहा होता है हमें। सो अगर हम उसमें D2O ऐड करते हैं तो हमें ये कंफर्म हो जाता है कि जो पीक गायब हुई, मतलब ये पीक अगर गायब हो जाती है, सो कंफर्म ये पीक OH या NH से आ रही थी। दैट्स व्हाट दिस शोज इफ इट गोज अवे। क्लियर? Yes, sir. Okay. Now the next question is that assuming this was a high res NMR, what does this peak tell me about the molecule? अगर ये high res है और इसमें splitting नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है? It doesn't have any like neighboring hydrogens. Yes, there are no neighboring hydrogens. या एग्जाम में हम उसको neighbor नहीं बोलते, हम लिखते हैं there are no hydrogen on the neighboring atom, ये हम बोल देते हैं। सही है? अच्छा, नेक्स्ट वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पीक एट 0.9, तो आई एम अज्यूमिंग दैट विल बी CH3, और 3 CH3s होंगे इसके पास। मतलब CH2 भी हो सकती है, CH भी हो सकती है, बट इट हैज ऑड नंबर्स, आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स पिकिंग CH3. Okay, now let's try to make this one. अब हमें इसको, we have to bring all of this together and we have to predict कि molecule कौन सा है. So this is confirmed OH or NH. The 2 hydrogens at 3 point something can be CH2. क्योंकि 2 हाइड्रोजन है. It could be CH2
अब मेरे पास जो ऑप्शंस आ रही हैं वो ये हैं कि ये CH3 विद ऑक्सीजन है, CH2 विद ऑक्सीजन है, बट CH3 मैं पिक नहीं कर सकता क्योंकि द हाइट इज 2, even though the shift is the same as CH3, the height is 2, so I will not be able to pick CH2, sorry, CH3. And it is also telling me कि ये CH2Cl हो सकता है, but I'm not very convinced because मुझे पता है कि यहाँ पे OH है, probably CH2Cl नहीं होगा, but this is still there. We can see if we can bring it all together. This is definitely CH3 and there's 3 of them. ये मुझे पक्का पता है. And their neighbor does not have any hydrogen. What does that mean? ये कब होगा? अगर CH3 तीनों एक ऐसे कार्बन के साथ ज्वाइन हो जिसपे 3 CH3s हैं, अब इनके नेबर पे कोई हाइड्रोजन नहीं. क्यों? क्योंकि इसका 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 तीनों का एनवायरनमेंट सेम है, तो 9 वाली पीक, और इन तीनों का नेबर एक है. रिमेंबर, ये इसका नेबर नहीं है, इसका ये नेबर है, और उसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है. व्हेन डू यू गेट नो हाइड्रोजन? ईदर व्हेन यू हैव समथिंग एल्स अटैच, मतलब CH2Cl हो सकता था कि अच्छा जी यहाँ पे, सॉरी CH2Cl नहीं, मतलब यहाँ पे इसके साथ हो सकता है यहाँ पे क्लोरीन अटैच हो, तो फिर पीक मेरे पास 6 की आनी चाहिए थी, 9 की नहीं आ सकती. आर यू फॉलोइंग दिस? अच्छा जी, ये हो गया. Now I also have CH2 there, तो आई एम अज्यूमिंग के वो भी सिंगलेट है, तो ये भी CH2 यहाँ पे ऐसे होगा क्योंकि उसके भी नेबर में कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो सेम कार्बन दोनों शेयर कर रहे हैं जिसकी वजह से उसका स्प्लिट नहीं हुआ. एंड आखिरी NH हो सकता है. NH में प्रॉब्लम ये है कि डबल बॉन्ड कैसे बनाएगा, मतलब किसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, मतलब नाइट्रोजन की एक बॉन्ड रहती है अभी, तो NH नहीं है, ये OH है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ अगली बॉन्ड कौन बना रहा है? आई डोंट हैव दैट हियर. डू यू गेट इट कि मैंने कैसे किया इसको? Yes, sir. Sir, could you explain nitrogen wala फिर से? So even though the shift because of nitrogen hydroxide is the same and the D2O part also shows कि दोनों हो सकते हैं, the problem over here is that if I put nitrogen with hydrogen, there must be something else attached to nitrogen. Why can't it be chlorine? Can you tell me? वैसे हो सकता है क्लोरीन अटैच हो सकती है, मतलब I could have a situation where I have Cl attached here. I'm not sure. Or bromine or something else. I have no idea. The most likely situation, the simplest answer is OH. ठीक है, but NH के साथ N के साथ क्या लगा हुआ है? I don't have the shift for that. And then another problem is कि किसने कहा है कि NH के साथ अगर Cl लगा होगा तो वो यहीं पे शिफ्ट देगा? हो सकता है वो 2.3 की बजाय 2.7 पे शिफ्ट देता हो. आई डोंट हैव एनी डेटा टू कंफर्म कि NH के साथ कुछ और लगा हुआ है. मैं अपनी मर्जी से Cl नहीं लिख सकता, मैं अपनी मर्जी से Br नहीं लिख सकता. एग्जामिनर ने मुझे कोई शिफ्ट डेटा नहीं दिया उसके लिए. हाँ, वो मुझे कहता कि व्हेन NH reacts with Cl it also gives a shift at OH, तो समझ आती है बात. फिर मैं कह सकता हूँ हाँ दोनों में से एक हो सकता है, लेकिन मैं अपनी सोच तो सकता हूं कि यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ कुछ और लगा होगा. मेरे पास उसको प्रूव करने के लिए कोई डेटा नहीं है, तो इसलिए आई विल नॉट गो थ्रू दैट. अपनी तरफ से बातें नहीं करूंगा. आई विल वर्क विद द डेटा दैट आई एम गिवन. देयर इज अ डबलेट क्लोज टू 1. okay, this is 1.8. there's a quartet close to 2. there's a singlet at 2.5, and there's a doublet near 3.5. Examiner says that this is an alcohol. There are no double bonds. This is saturated. And it has a molecular formula of C4H10O. That's what the examiner has given us. So you have to work with that.
So shift tells me what the group is going to be. So ये हो सकता है CH, CH2, CH3, तीनों में से कुछ भी हो सकता है. 1.8 पे ये वाली 1.8, 1.9 पे ये मेरे पास CH हो सकती है, ये OH है कंफर्म, NH भी हो सकती है, लेकिन NH है नहीं क्योंकि उसने O दे दिया, और ये होगी CH2O या CH3O. Sir, Yes. for 1.8, if we're supposed to get CH, CH2, and CH3, shouldn't the value be between 0.9 to 1.7? For CH that could be an option, but तो ये तो 1.8, लेकिन 1.8 है, the data मतलब booklet I'm के. assuming it to be 1.8. I know उसने डेटा बुकलेट में 1.7 बोला हुआ है, but I'm not sure कि 1.7 से आगे है या नहीं है. I'm not sure of that. Oh, okay. हाँ, 1.8 पे NH भी हो सकता है, NH भी हो सकता है, OH भी हो सकता है. लेकिन दो OH हो सकते हैं, दो NH नहीं हो सकते. तो आई एम अज्यूमिंग कि ये होगा, क्योंकि ये किसी और का नहीं है. I don't see it. Okay, so let's just go with this now. We have 3 carbons. अब इनकी हाइट्स हमें दी हुई है, इसने हाइट्स नहीं दी हुई, लेकिन हमें ये पता है कि ये डबलेट है. डबलेट का मतलब है कि इसके साथ वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और वो क्वार्टेट है. उसका मतलब है उसके साथ वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है. सो कोई एक चीज ऐसी है कि जिसके साथ वाले हाइड्रोजन पे एक हाइड्रोजन है और उस हाइड्रोजन के साथ वाले पे 3 हाइड्रोजन है. डज दैट मेक सेंस? क्योंकि दिस डबलेट कंफर्म्स के साथ एक कार्बन पे हाइड्रोजन है, नेबर में एक हाइड्रोजन है, बट हाइट से मुझे नहीं समझ आ रही. हाइट उसने दी नहीं है हमें. विदाउट हाइट आई कैन नॉट से कि ये 6 है, 3 है, 9 है. आई डोंट नो. लेट्स स्टिल फिगर इट आउट. ये कह रहे हैं CH2O है और ये डबलेट है, मतलब इसके साथ वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, राइट? सो आई एम अज्यूमिंग कि इसका साथ वाला कार्बन और इसका साथ वाला कार्बन एक ही है. सो मतलब ये इसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, CH2O. That's what this is. But I don't know if there are 2 hydrogen or 3 hydrogen. 3 नहीं हो सकते क्योंकि नेबर है ना, इसका नेबर है. मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ. तो O के साथ इधर H लगा होगा. ठीक है जी. C4H10O. How many hydrogen do I have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I'm missing 3. हाँ ठीक है. तो ये बिकॉज इसकी हाइट इससे काफी ऊपर है, आई थिंक ये वाले 2 होंगे, तो ये CH3 होंगे. The reason I did this is because I know कि कोई और CH3 है. I'm missing 3 hydrogen and all of them are to the neighbor with 1 hydrogen, क्योंकि डबलेट है. सो तो यही बनता है फिर इसके साथ 3 और हाइड्रोजन लगा. आई थिंक दिस इज द स्ट्रक्चर. What do you guys think? All right, let's do one more question. Okay, so I have an NMR. There is a multiplet. There is a singlet. There is another singlet. This one is between 7 and 8. These are the numbers. So how many hydrogens do we have in total? 7. 7, yes. This thing, जो ये बहुत ज्यादा होता है, इसको बोलते हैं multiplet. And usually this shows an arene ring. Benzene या benzene का कोई और ring. This is what it usually shows. Let's see. By this time I know कि ये OH है या NH है. लेकिन ये
फिनोल नहीं हो सकता, बिकॉज फिनोल की शिफ्ट ज्यादा है. इफ यू लुक इन द टेबल, फिनोल इज बियॉन्ड 4.5 and this one is around 2.5, so this must be OH. This one at 2, like between 4.5, yeah, 4.5 is thoda sa aage. It has 2 hydrogens. CH2 हो सकता है. 2 हाइड्रोजन में और क्या है? NH2 हो सकता है. Yes, NH2 हो सकता है, but with this. बट उसमें एक प्रॉब्लम है, फिर ये कैसे ज्वाइन होगा उसके साथ? ओके, NH भी हो सकता है वैसे, बट नो, NH विद आर्गन नहीं हो सकता, सॉरी विद एरीन नहीं हो सकता. These two options are there. ओके, ये मल्टीप्लेट तो क्लियरली एरीन रिंग है. ठीक है, तो मेरे पास क्लियरली एक रिंग है. उस रिंग के साथ NH2 लगा हुआ है अगर, तो फिर OH कहाँ जाएगा? क्योंकि OH with arene has to be beyond 4.5. इससे आगे होना चाहिए उसको, वो है नहीं, क्योंकि 4.5 से आगे वाली पीक में 2 हाइड्रोजन है, तो ये NH2 नहीं हो सकता, क्योंकि जो चीज यहाँ है उसके साथ OH लगा हुआ है. तो आई गेस यहाँ पे CH2 होगा. Do I have 7 hydrogens? No, I have 8 hydrogens here. What does this mean? This is telling me I am very confident कि ये argon ring with 4 hydrogen. तो इसका मतलब है कोई एक ऐसा है जहां पे हाइड्रोजन के अलावा कुछ लगा हुआ है. हो सकता है यहाँ पे क्लोरीन लगा हो, या हो सकता है कि यहाँ पे क्लोरीन लगा हो, या ये नहीं तो हो सकता है यहाँ ब्रोमीन लगा हो, या हो सकता है कहीं और में कुछ आयोडीन लगा हो. आई एम नॉट श्योर, बट कहीं पर कुछ ऐसा लगा हुआ है विच इज नॉट हाइड्रोजन. लेट मी जस्ट डू दिस. ये क्या है? आई कैन नॉट बी श्योर एट द मोमेंट, सो आई जस्ट पुट X देयर. क्या मुझे नहीं पता भाई ये क्या है, बट ये कुछ ऐसा है विच डज नॉट हैव हाइड्रोजन. हाँ, एग्जामिनर अगर मुझे MR की वैल्यू देता है तो प्रोबेबली मैं उससे कैलकुलेट कर सकूंगा. द क्वेश्चन सेज what is the difference in the NMR spectra of these compounds, and this is a 2-mark question, 3-mark question. Okay, let's see. First of all, how many environments here in this one? 3. Actually 1, because this is CH2, this is CH2, this is CH2, और इसके नेबर भी सेम है, इसके नेबर भी सेम है, और इसके नेबर भी सेम है. तो इनमें एक ही पीक होगी और उसमें स्प्लिटिंग भी नहीं होगी, क्योंकि वो सब इन्वायरमेंट तो एक जैसा है. उसकी हाइट 6 होगी. अच्छा, हाइट यहाँ पे हमें बताने की वजह से जरूरत नहीं होती एग्जाम में. विल से 1 पीक विद 6 एज कह सकते हैं हम. उसको मोस्ट लाइकली काउंट नहीं करता. क्यों नहीं करता काउंट? क्योंकि दे आर टेक्निकली द सेम आइडिया. 1 पीक का मतलब है सेम इन्वायरमेंट, 6 एज का मतलब है कि सेम इन्वायरमेंट है, तो ऐड होंगे ना, रेजोनेंस होगी. ओके, लेट्स सी ओवर हियर. 1 peak for this, 1 peak for this, 1 peak for this. So 3 peaks, and there will be splitting. We can go in detail of this कि एक peak होगी. अच्छा, बड़ी सिंपल सी एक बात हम बता सकते हैं उसको कि डबल बॉन्ड की वजह से उसका रीजन जो है स्प्लिटिंग का, सॉरी डेल्टा का, डबल बॉन्ड कहाँ पे होती है, या 4.5 to 6 में डबल बॉन्ड होगी. तो हम कहेंगे कि इसमें पीक इन 4.5 to 6.0 डेल्टा. ठीक है, सो वी कैन से दैट. ऑलराइट.